don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. खेल रत्न अवार्ड के बाद I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow भारत के up, प्रमुख no I don't नायक take shit. अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई। अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही बता दें, वर्तमान नियमों के अनुसार खेल रत्न विजेता को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्जुन पुरस्कार विजेता को खेल रत्न के लिए नामांकित किया जा सकता है। अगला हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने वाले गुरुओं को प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, भारतीय स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा के दिशा निर्देशक महान एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली। दिलचस्प बात तो यह है कि द्रोणाचार्य या द्रोण महाभारत में अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन जैसे शिष्य को तराशने के लिए द्रोणाचार्य को यह पुरस्कार भेंट स्वरूप में दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। सूची में अगला नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे प्रदर्शन और व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया जाता है। ओलंपियन मुक्केबाज शाहूराज बिराजदार और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की एक शानदार खिलाड़ी और कोच अपर्णा घोष इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। लाइफ टाइम पुरस्कार मूल रूप से 2002 में गठित किया गया था और इसे 2023 तक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
साल 2024 में देश के विभिन्न खेल सम्मानों को तर्क संगत बनाने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा इसे अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम के रूप में फिर से नामित किया गया था। सूची में अगला नंबर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी का है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी या वाका ट्रॉफी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद के सम्मान के लिए सिफारिश किए गए लोगों को पिछले एक साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने पहला पुरस्कार जीता था, लेकिन तब से पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने विजेताओं की सूची में अपना दबदबा कायम रखा है। दिए गए 64 माका पुरस्कारों में से 22 पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पास है। इनाम में एक रोलिंग माका ट्रॉफी के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। चलते हैं आखिरी पुरस्कार की ओर, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक तौर पर भूमिका निभाने वाले संगठनों को और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। 4 अलग-अलग विभागों में नामांकित लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण के उपाय और विकास के लिए खेल का उपयोग करना शामिल है। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिलती है। एक साल में एक ही श्रेणी में कई विजेता हो सकते हैं। आमतौर पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर सिफारिश किए गए खिलाड़ी भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार न केवल खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित करते हैं, बल्कि समाज को भी खेल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्लेयर टेल्स के खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे नई कहानियों और स्पेशल एपिसोड के साथ। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया गवर्नर। नमस्कार।